Hello friends, today we'll check how to handle a string in C language. So to deal with string, what we need to do first, we need to declare a character array variable, right? So like character and then the array, right? Array means the name, okay, and the length of the name, right? So this is the variable where we can put string value, right? So what is actually string? String is, the set of characters. So set of characters means you can directly pass the set of character with double quotes. So remember this thing, you have to use the double quotation. So inside the double quotation you can directly put your name like this way. So what it means, no, the Paresh Sarkar, this is my name, I store in the name variable, right? So what is the length of 100? That means you can put 100 characters inside the name variable, right? So one thing you have to remember, when the length is 100, it means you can put 99 characters, right? So just less than 1. So 100 minus 1, that is 99. So you can put 99 characters for the name variable, right? And the last space will be occupied by a special character, that is /0, right? So this is a null character, but we don't need to put this one, right? So this will be automatically managed by the C language, correct? So what we have to keep in your mind, if the length is 100, then maximum character we can pass, that is a 99, right? And the last character will be automatically managed with the null character, right? Because null character is the terminated character of string, right? If I need to display my name, so what is the variable I need to print? The name. So here I'll change the name, right? And which type of modifier we need to do? It is a string, so that's why there is the another format specifier, that is the percentage s, right? Percentages. So let's check. See, I written my name here, right? So this way we can directly put any string inside a character array variable, right? But what about if we go with user input? So this is a variable where I need to put my name runtime. So what I will do, and then scanf, we know scanf, what will be the specifier? Percentage s, and what will be the name of the variable? What actually we did before? The address sign, right? Before the variable. But see, it is a array name, right? So before the array name we never use address sign, because array name itself a pointer. Pointer means this is already occupied the address. So let's check, and after scan I am just going to print my name. What happened? I put my name with my surname, right? Name and surname, but it actually returned my name only, it did not print my surname, correct? So why? Because my length is 100, so it is enough, no, there is enough or adequate, the space are there. What actually happened, कीबोर्ड से जब बफर में इनपुट बफर में आप कैरेक्टर्स को आप इनपुट करते हो, तो जैसे ही उनको स्पेस मिल जाती है ना, वाइट स्पेस, सी यहाँ एक वाइट स्पेस दिया था मैंने नेम और सरनेम के बीच में, सो दैट वाइट स्पेस और एंटर जब भी उसको मिलता है आपके इनपुट से, सो इट विल पुट द नल कैरेक्टर, और जैसे ही नल कैरेक्टर उसको मिल जाता है तो वो स्ट्रिंग को वही टर्मिनेट कर देता है, स्पेस से उनको टर्मिनेट करता है, मतलब बाकी आगे का जो चीज जो होगा ना वो बफर में तो रहेगा, बट वो रीड नहीं होगा स्कैन से। सो जैसे ही रीड नहीं होगा तो वो क्या करेगा, उसके अंदर वो नल कैरेक्टर डाल के उनको टर्मिनेट कर देगा। सो सी लैंग्वेज ने क्या किया ना, इसके लिए आपको अलग से एक फंक्शन दिया जिसका नाम है एफ गेट एस, राइट? एप गेट एस एक जो मेथड है वो क्या क्या चीज लेते हैं, देखो ये लाइन क्या करेगा ना, जो लाइन जो भी हम टाइप करेंगे स्टैंडर्ड इनपुट के अंदर, वहां से 100 कैरेक्टर्स को रीड करके, एक्चुअली 100 रीड नहीं करेगा, आपने साइज 100 दिया, इनका मतलब हुआ
वो एक कम करेगा, राइट, 99 करेगा, और एक जो है वो नल कैरेक्टर के लिए रखेगा। अगर सोचो मैं यहाँ, सपोज यहाँ मैं फाइव फाइव किया, इसका मीनिंग क्या हुआ? इट मीन्स जो भी जितने भी आप डालोगे उनमें से चार ही कैरेक्टर, फर्स्ट फोर कैरेक्टर्स विल बी रीड। तो यहाँ फाइव दिया है ना, तो क्यों वो फोर कैरेक्टर को रीड करेगा, फाइव को नहीं? क्योंकि वो फाइव जो फिफ्थ कैरेक्टर जो होगा वो नल कैरेक्टर, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। सो फोर प्लस नल इक्वल टू फाइव। सो इस तरह से होता है, राइट। अगर मैं आपको ये इनका इनका जो फंडा है लेंथ का, ये अगर मैं आपको दिखाऊं, तो देखो ये प्रोग्राम मैंने सेव किया। मजे की बात क्या है ना, गेट एफ गेट एस जो है वो स्पेस को भी रीड करता है। तो हमारा जो प्रॉब्लम था यहाँ स्कैन एफ के अंदर, जो स्पेस को रीड नहीं करता था, बट ये सबको रीड करता है, राइट। ये सिर्फ किसको रीड नहीं करता है? एंटर को रीड नहीं करता है। जैसे ही एंटर मार दिया तो ये खत्म, right? Run, enter your name, C P A R E S H and then space S A R K A R, Sarkar, right? As I enter, first four characters are read, right? One, two, three, four. Actually my name is 100, then don't worry, you put no 100 over here. That means you can put 99 characters in your name. So let's check, see. So you did not put 99 character, right? Whatever the character that is less than 99 will be read. So we will not use this scanf, okay? Always we'll go with the app getters. Fine. Now if I don't write this 100 over here, so I need to pass the size of operator, then also it is fine. Size, size of name, right? So that is fine. Size of name means 100. Okay. Now, so this is the about a string, how to manipulate with a string, or how we can assign a string value in our character array. There are few ready-made function, right? If I say after enter your name, so what is the length of your name? So this is a type of a program in string, right? So what to do over here? If I print the name, so it will print the name only. What is the length of your name? So there are so many things regarding string, right? So many activities. आपके string का length क्या है? मेरे पास दो string है, right? वो दो string को मुझे combine करना है, right? मेरे पास एक string है, मैं उसको compare करना चाहता हूँ और एक string के साथ। पर बस मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसको मैं और एक जगह पे कॉपी करना चाहता हूँ। सो दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली एक्टिविटीज यूज्ड रिगार्डिंग स्ट्रिंग। सो यहाँ मैंने जो मोस्टली यूज होता है उनका ही नाम लिया है, बट देर आर सो मेनी। ओके, सो STRLEN, STR cat मतलब concatenation, STRCMP मतलब STR string compare, STRCPY मतलब string copy. So these four are the most frequently used when we go with a string program. So अगर मैं ये ready-made methods है, बराबर, these are the ready-made methods available in C language. So वो आता कहाँ से है? ये इसको यूज करना है तो हमें इससे पहले क्या करना पड़ेगा? string डॉट एच हेडर फाइल डालना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं string डॉट एच हेडर फाइल डाल दूं तो मैं ये सबको यूज कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ जानना चाहूँ TRLEN स्ट्रिंग लेंथ, वो क्या मांगता है, किसका लेंथ आपको निकालना है, तो मैंने ये एफ गेटेस से क्या किया ना, जो मैं नेम वेरिएबल था उनको तो मैंने वैल्यू असाइन कर दी। अब मुझे नेम वेरिएबल को क्या करना है, इसके अंदर दे देना है। सो जैसे ही मैं दे दूं, ये string length फंक्शन क्या करेगा, it will count all the characters, it will count inside the name including the null character also. So वो आपको रिटर्न में देगा। रिटर्न में देगा मीन्स, तो इनका रिटर्न टाइप क्या है? इनका रिटर्न टाइप होता है इंटीजर टाइप, मतलब वो आपको एक लेंथ रिटर्न करता है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, राइट। सो हम यहाँ क्या करेंगे, एक इंटीजर लेन करके एक वेरिएबल रखेंगे और इसको इस तरह से कॉल करवाएंगे, राइट। So this is a way. So integer len इक्वल टू strlen फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और ये नेम को मैंने डाल दिया, तो इसके पास जितने भी लेंथ होंगे वो आपको इसमें स्टोर हो जाएगा और मैं उसको यहाँ प्रिंट करूंगा। ऐसा लिख सकता हूँ, len, लेट्स चेक, P A R E S H
6 character, and then a space 7 character, 8 9 10 11 12 13 plus one null character 14. So what will be the answer? 14. So this is a direct use of the string function, strlen. The next one is strcat, string concatenation. There are two string, so I need to concat into one. So name equal to Paresh, okay, and the another, now I need to use concat. Str concat method needs two parameter, name and the surname. That's it. Now what actually will be done? Surname value, that means Sarkar. So that will be added to the name वेरिएबल. सो आपका जो नेम वेरिएबल है उसके पास तो परेश है, बट उनमें सरनेम भी ऐड हो जाएगा, राइट? सो ये कॉन्केट हो जाता है नेम पे. तो अभी हमें किसको प्रिंट करना चाहिए? नेम को. देखो नेम को प्रिंट किया. देखो नेम में परेश था, सरनेम में सरकार था, तो हमने क्या किया? नेम और सरनेम, राइट? तो ये हमने ऐड कर दिया. ऐड हो गया तो नेम में अभी क्या करंट वैल्यू आ गई इस लाइन के बाद ना, परेश, और सरनेम में सरकार, ये दोनों आ गए. अब यहाँ स्पेस नहीं है बिकॉज यू डोंट हैव स्पेस ओवर हेयर. तो आप इधर यहाँ स्पेस दे दो एक तो हो जाएगा, या यहाँ एक स्पेस दे दो तो भी चल जाएगा, राइट? सो दैट्स नॉट अ मैटर. बट यहाँ हमें एक चीज़ है क्या रखनी पड़ती है ना, आखिर में जो सेकेंड स्ट्रिंग है ना वो फर्स्ट स्ट्रिंग में कॉन्केट हो रहा है. तो फर्स्ट स्ट्रिंग में हमारी जो साइज होगी ना, सो दैट शुड बी, देयर शुड बी द अवेलेबल स्पेस, राइट, टू ऑक्यूपाई द सेकेंड स्ट्रिंग, राइट? तो जिसमें कॉन्केट हो रहा है उनके पास एनफ स्पेस पड़ी रहनी चाहिए. उसके बाद हम देखेंगे कंपेयर. सो कंपेयर का मीनिंग होता है ना, ये भी दो वेरिएबल लेता है, देखो सी एम. सो कंपेयर क्या करता है ना, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है. मेरे पास देखो स्ट्रिंग क्या है, परेश एंड सरकार, तो हम इनको चेंज कर देते हैं. मेरे पास स्ट्रिंग है, दोनों सेम स्ट्रिंग है, राइट? और थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं, बना रहे हैं तो स्ट्रिंग सी एम पी स्ट्रिंग वन एंड स्ट्रिंग टू. अब ये करता क्या है ये सबसे पहले जानना पड़ेगा. स्ट्रिंग कंपेयर क्या करेगा? दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा, राइट? ऐसे. और जब दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं फिर कंपेयर करके वो क्या बताएगा ना, ये कंपेयर करके बताता है भाई दोनों इक्वल है या नहीं. अब इक्वल है कि नहीं वो कैसे डिसाइड करते हैं ना, वो कैरेक्टर टू कैरेक्टर डिसाइड करता है, राइट? कैरेक्टर टू कैरेक्टर मीन्स ये ए के साथ इस ए का अगर उनको डिफरेंस मिल गया तो वो कैरेक्टर की जो आस्की कोड है उनको माइनस करेगा, फर्स्ट वन माइनस सेकंड वन, राइट? अब हमें देखते हैं ए का आस्की कोड क्या है. ए की जो आस्की कोड है 65, स्मॉल ए का आस्की कोड है 97, राइट? राइट, तो डिफरेंस फर्स्ट वन माइनस सेकंड वन, ऐसा होता है डिफरेंस, राइट? पहले जो नेम दिया यहाँ जो दिया वो माइनस ये. सो एक एक कैरेक्टर का होगा, तो 65 माइनस 97 हो गया, तो रिजल्ट क्या आएगा? -32, राइट? तो अगर पहला स्ट्रिंग छोटा है तो ये छोटी हो गई ना, ये 65 है, तो वो दूसरे में और जाएगा ही नहीं, राइट? चेक करने के लिए. तो अगर छोटी हो जाती है फर्स्ट वन तो उनकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव में आएगा. सो जब भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम समझ लेंगे str1 छोटी है कंपैरिजन में. और अगर यहाँ ए है और यहाँ ऐसा है, स्मॉल है या कैपिटल है, तो क्या होगा ना, इनकी 97 है और इनकी 65 है. सो 97 माइनस 65 इक्वल टू 32 प्लस 32. सो रिजल्ट क्या होगा ना, 32 आएगा. सो अगर पॉजिटिव नंबर आपके पास आता है रिटर्न में, सो आपका ये जो होगा ये बड़ी वैल्यू हो जाएगी, राइट? इससे स्मॉल इससे ग्रेटर हो जाएगा. गेटिंग? और अगर दोनों सेम है, जैसे कि अगर मैं दोनों में ऐसा दे दिया, तो देखो ये दोनों का क्या है, 97 97, तो जीरो. उसके बाद इसका चेक होगा पी का. सो उनको अगर फर्स्ट कैरेक्टर, अगर उनको कैरेक्टर टू कैरेक्टर करेगा, और अगर उनको डिफरेंस मिल जाती मिलता नहीं है तो वो सेकंड कैरेक्टर में जाएगा.
अगर डिफरेंस मिल गया तो वो आगे चेक करने के लिए नहीं जाएगा। तो इस स्ट्रिंग में क्या होगा, हर एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ वो कंपेयर करने जाएगा और हर जगह पे उनको जीरो जीरो मिलेगा, तो फाइनली उनको क्या रिटर्न मिलता है, जीरो। सो जब ये कंपेयर एसटीआर कंपेयर मेथड आपको रिटर्न में जीरो देता है, तब हम क्या बोलते हैं, दोनों स्ट्रिंग इक्वल है, राइट। तो ये रिटर्न क्या देता है ना, इंटीजर। तो आप एक इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर। अभी एक बार डिफ को चेक कर लेते, परसेंटेज डी। और सो अभी हमने देखो दोनों में एप्पल एप्पल जो दिया हुआ है वो दोनों स्मॉल लेटर है। सो इनका जो रिटर्न वैल्यू होगी, देखना ये जीरो रिटर्न करेगा। देखो ये जीरो है, राइट, ओके। अब अगर मैं इनको कैपिटल देता हूँ, तो देखो पहला वाली फर्स्ट स्ट्रिंग छोटी हो जाएगी, इनका मतलब इनका रिटर्न वैल्यू क्या आएगा, -32, -32, राइट। अगर मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ स्मॉल और यहाँ कैपिटल, तो रिटर्न वैल्यू हो जाएगी ओनली 32, मतलब पॉजिटिव 32, राइट। तो इससे हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं कैसे ना, कौन छोटा है कौन बड़ा अगर बोलना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इफ का यूज करेंगे ना, इफ बोथ आर इक्वल, सेम और इक्वल वट एवर, एल्स डिफ अगर नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू कैसे बताते हैं ना, लेस देन जीरो, तो हम क्या बोलेंगे, टू, राइट। और यही चीज अभी देखो एल्स बचेगा, सो नेगेटिव हो गया, तो अभी आपके पास सिर्फ पॉजिटिव ही बचता है। तो पॉजिटिव मतलब आपको डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट वन बड़ा हो गया। सो यहाँ हम लिखेंगे बिगर, लेट्स से, देखो ए पी पी एल ई इज बिगर देन एप्पल। तो हमने कोई जगह पे एक्स्ट्रा प्रिंट किया, राइट, इनको बंद कर देते हैं, ओके। और कंपाइल करते हैं, देखो एप्पल इज बिगर देन ए पी पी एल ई, सब में एक स्लैश एन दे देते हैं, ओके। अब हम इनको चेंज कर देते हैं, नाउ it answer will be the same, right? देखो both are same, right? अब हम इनको छोटा बना देते हैं, तो ये आपका ये आपकी छोटी वैल्यू हो गई, ASCII कोड के हिसाब से ये बड़ी हो गई। सो फर्स्ट वन इज द स्मॉलर वन, ऐसा बताएगा। देखो एप्पल इज स्मॉलर देन एप्पल, राइट। सो ये था। अच्छा, और एक है एस टी आर कॉपी। अब एस टी आर कॉपी जो है वो क्या करता है, स्ट्रिंग कॉपी क्या करता है, एक डेस्टिनेशन लेते हैं कहाँ हमें पुट करना है, और मतलब कॉपी कहाँ करनी है, तो यहाँ कॉपी करनी है, और एस टी आर टू से कॉपी करनी है। तो हम एस टी आर टू में वैल्यू देंगे। सो ये लाइन में निकाल देता हूँ, तो एस टी आर टू में हमारे पास देखो वैल्यू पड़ी है एप्पल, और उसको मैं डालूंगा, कॉपी करूंगा किसमें, एस टी आर वन में। सो एस टी आर टू आपका सोर्स हुआ, तो ये सोर्स में से डेस्टिनेशन में आएगा। तो अभी मैं प्रिंट करके देखूं कि किसको ना, वन को प्रिंट करूं, परसेंटेज एस और एस टी आर वन, राइट। देखो हमने प्रिंट किया एस टी आर वन को, एस टी आर वन में कोई वैल्यू नहीं थी, बट मैंने स्ट्रिंग कॉपी में डाला था एस टी आर वन एस टी आर टू, तो टू की वैल्यू वन में, टू की वैल्यू वन में मूव नहीं हुआ, मतलब जस्ट कॉपी हुआ, एस टी आर के पास भी है सेम वैल्यू, राइट, इक्वल हो गया वो दोनों, गेटिंग। तो ये था स्ट्रिंग को हैंडल करने का एक तरीका। इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, अगर हम जैसे सोचो यहाँ एप्पल लिया, राइट, और यहाँ मैंने रखा कितना, 100। तो जब मैं डायनामिक नहीं डालता हूँ, मतलब मैन्युअली डालती है, सो मैन्युअली जब डालते हो तब सबको मालूम है क्या लेंथ है इसका, तो लेंथ कितना है, ये ए पी पी एल ई 5 है, और नल करेक्टर का एक है 6, तो इनको 6 रखो ना, राइट। क्यों आप एक्स्ट्रा मेमोरी प्रोग्राम में कंज्यूम कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 रखो,
ये भी ना करो तो हमारे पास एक आसान तरीका है, आप कुछ भी मत दो। तो इससे क्या होता है, अगर हाँ ये अगर कुछ नहीं देते हो तो आप डायनामिक वैल्यू नहीं डाल सकते हो। मतलब मेरा कहना है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मतलब मैं ये स्ट्रिंग str2 में ना वैल्यू डायनामिकली वैल्यू में पुट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इनको ऑलवेज साइज चाहिए होता है। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हो जो इसको मुझे कुछ डायरेक्ट वैल्यू देनी है तो आप कर सकते हो। देखो हमने कोई साइज नहीं दिया तो इनकी साइज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इसमें 5 है और एक आपका नल कैरेक्टर है तो ऑटोमेटिक इनकी साइज हो जाएगी 6। गॉट इट। तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है अगर आप मैनुअल वैल्यू लेके काम कर रहे हो, बराबर, स्टैटिक वैल्यू लेके। तो जितना आप यूज़ करोगे उतना ही मेमोरी एलोकेट होगा, राइट। तो ये था आपका स्ट्रिंग रिलेटेड प्रोग्राम। ओके, दैट्स इट इन दिस लेसन। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स।